Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. As we all know, PYQs are very important when it comes to the prelims. And this is a video where we're going to cover every single PYQ that has appeared in science and technology from 2013 to 2024 in the prelims exam. सारे PYQs एक बारी में करेंगे. We'll sit for 2 hours, treat this like a test, and let's cover every single PYQ. Now I know most of you, I hope most of you have studied science and tech from me, either from PRP or from the videos available on Sarthi IAS or from my notes. So make me proud, get all the questions right, and once you're done with this, do comment your score in the comments below, and let's hope that at least science and tech and all the PYQs of science and tech get sorted today. So in this video, we're going to cover every single PYQ that has appeared. Treat this like a test. Every question is going to be covered, and at the end, comment your scores down below. See, I know most people are not going to watch this till the end because obviously इतनी patience किसके पास है कि हम 2 घंटे बैठे हैं और सारे PYQs करें. But अगर आप एक serious aspirant हो जो ये काम करेगा and you'll actually sit down till the end, watch this video, solve the questions and treat it like a proper test, you will definitely benefit from it. So how do you treat this like a test? You will see the question on the screen. आप वीडियो को पॉज करो, try to solve the question, right? Then play the video, and once you play the video, I will explain the answer to you. ऐसे करके we will cover every single question that has appeared in the PYQs from 2013 to 2024 और एक बारी में हमारी सारी रिविजन हो जाएगी. PYQs हम सबको पता है हमें करने. PYQs करो या ना करो, PYQs की टेंशन ज़रूर करो. This has been the motto so far. तो इसको हटा के actually PYQs solve करते हैं. Let's get started. All right, so this is question 1. Which of the following statements are correct regarding general difference between plant and animal cells? Okay, plant cells have cellulose cell walls whereas animal cells do not. Okay, plant cells do not have a plasma membrane unlike animal cells which do, and mature plant cell has one large vacuole while animal cell has many small vacuoles. Now if you look at this question, you will all know that cell, which is the fundamental and structural unit of life, उसका एक basic condition है. There are 3 conditions of anything to be a cell. One is that it must have a plasma membrane. 2 is that it must have genetic material in the form of DNA or RNA, and 3, it has cytoplasm, right? The cellular matrix where all the processes of life take place. तो सारे cells में ही plasma membrane होती है, तो ये second statement तो गलत है. Plant cells also have a plasma membrane. First statement बिल्कुल सही है. Plant cells की cell wall होती है, animal cells की नहीं होती. And plant cells have large vacuole while animal cells do not. Even this is correct. So answer here is C, 1 and 3 only. आगे चलते हैं. By the way, this PDF I will upload in the step group, तो आप खुद से भी यहाँ से revise कर सकते हो. Second question, in the context of developments in bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in the news, refers to what? हमने एक process पढ़ी है that DNA to RNA to protein is the process. DNA to RNA को हम कहते हैं transcription and RNA to protein को हम कहते हैं translation. In my short lifespan, I think I must have said this entire term DNA to RNA to protein transcription and translation more than 1000 times now. But from here we can get the answer that transcription, or if you read transcription here, you would understand that transcription will be related to the formation of mRNA. The formation of mRNA would be the thing that's important here. The full range of mRNA or messenger RNA molecules expressed by an organism, right? Transcription से ही बना है word transcriptome. Even the technique of word breakdown is very helpful here. आगे चलते हैं. Let's look at question 3. ये question थोड़ा पुराना है, but I've put it here just so that हमारी थोड़ी सी revision हो सके. So the question is, which of the following cell organelles play the most significant role in protein synthesis? So protein synthesis में actually the most important organelle as we know is ribosome, and ribosome is sometimes attached to the rough endoplasmic reticulum. That's what makes the endoplasmic reticulum rough, and this RER is actually most important for protein synthesis and also for protein transport. So answer here is B, endoplasmic reticulum and ribosome. आगे चलते हैं. Question number 4. Which organelle in the cell other than the nucleus contains DNA? Now, this answer is fairly easy because we've read a lot about mitochondrial DNA. But यहाँ मैं आपसे 2 questions पूछता हूँ, especially to those जो actively सुन रहे हैं और इस वीडियो को एकदम एक ऐसे मूवी की तरह आराम से बेड पे बैठ के नहीं देख रहे, प्रॉपरली देख रहे हैं. So this year in the current affairs, there's been a discussion of a new organelle like this, right, which is related to the endosymbiont theory. इस साल का current affairs है
पहले तो आप कमेंट्स में बताओ कि ये कौन से ऑर्गेनेल की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द एंडोसिम्बायंट थ्योरी एंड व्हाट डज इट प्रूव। एंड अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, इस क्वेश्चन का आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया है, अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज अनदर ऑर्गेनेल, देयर इज अनदर ऑर्गेनेल दैट हैज डीएनए। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, आपको हिंट दे देता हूँ, ये ऑर्गेनेल प्लांट सेल्स में होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनेल, ये भी आपने बताना है, दिस टेल मी इन द कमेंट्स। एंड व्हाट इज द न्यू ऑर्गेनेल दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंडोसिम्बायंट थ्योरी। इस पे हिंदू में 2 बार आर्टिकल्स आए हैं काफ़ी बड़े, तो ये आपने कॉमेंट्स में बताना है। आई होप यू ऑल गेट दिस राइट ऑल्सो। आगे चलते हैं, इसका आंसर तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डीएनए बारकोडिंग can be a tool to do what? A. Assess the age of a plant or animal, distinguish among species that look alike, and identify undesirable animal or plant materials in processed foods. हमें करेक्ट आंसर्स देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं असेस द एज। अगर डीएनए से हम एज असेस कर सकते, राइट, व्हाट वुड बी द एसेंशियल कंडीशन। तो ओके, डीएनए से हमें एज असेस करनी है, दैट मीन्स डीएनए शुड चेंज विद एज, राइट, डीएनए शुड चेंज विद एज, तभी तो हम एज असेस कर पाएंगे कि अच्छा अगर एक 5 साल का बच्चा है और एक 50 साल का आदमी है, सेम लाइक आई एम 27 नाउ, so my DNA when I was 5 years old versus my DNA now should be different. Only then you will be able to assess age when with DNA, right? So that is obviously not true. First statement is wrong because DNA का या किसी भी न्यूक्लिक एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक है that it has to be stable, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 2 and 3 नाउ, राइट। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, ये हम ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ स्पीशीज, राइट, डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी पर्टिकुलर स्पीशीज, सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट वी कैन सी, दिस इज करेक्ट। एंड आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड, अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, ये भी हम बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज इफ वी आर एबल टू फाइंड डीएनए हियर एंड देन आइडेंटिफाई which animal or plant this DNA is going to come from, this is also possible. So answer here is D, 2 and 3. आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूछा इन्होंने 2001 में, 2021 में दोबारा पूछा। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम द पेरेंट to the child can be prevented by mitochondrial replacement therapy before or after in vitro fertilization of the egg. Okay, a child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए लेट मी एक्सप्लेन अ कपल ऑफ थिंग्स टू यू फर्स्ट। एक बार एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राइट, लेट्स लुक एट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन एंड देन वील सी द आंसर। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हैपन, हाउ डज रिप्रोडक्शन हैपन इन ह्यूमंस। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो this is, let's say, the sperm and this is the egg, right? Egg has a haploid nucleus. Haploid means only one set of chromosomes, 2n की जगह n. Sperm has a haploid nucleus, यहाँ पर n. When this reproduction happens, the sperm will only pass on, the sperm from the male will only pass on this haploid nucleus. तो एग के अंदर सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस जाएगा, बाकी इस एग के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं, लेट्स से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारा मदर से आएगा। एंड वंस दिस फर्टिलाइजेशन हैपन्स, दिस फॉर्म्स द जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यूबॉर्न। तो क्या हो रहा है, मदर ने एग कॉन्ट्रीब्यूट किया, एग में हैप्लॉइड न्यूक्लियस था और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स थे। फादर ने स्पर्म कंट्रीब्यूट किया और स्पर्म का सिर्फ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही एग के अंदर आएगा, राइट। these two things are going to get together and this is called a pronucleus, and this pronucleus is going to merge to form nucleus, right। but ultimately अगर हम देखें तो जो न्यूबॉर्न है उसके सारे ऑर्गेनल्स आर कमिंग फ्रॉम द मदर, उसका वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कमिंग फ्रॉम द मदर, ओनली फादर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अदर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, दैट्स ऑल। तो अब अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो इसको डिजीजेस हो जाएंगी। फादर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, सिर्फ मदर से ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस भी फर्स्ट सेल में मदर से ही आएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इन दैट ऑप्शन वाज करेक्ट। सेकेंडली, अब अगर मुझे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है, इफ आई हैव टू प्रिवेंट दीज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, आई कैन डू टू थिंग्स। वन इज दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी, प्रो न्यूक्लियस बन चुका, मैं इस प्रो न्यूक्लियस को निकाल के, आई टेक दिस प्रो न्यूक्लियस आउट एंड आई ट्रांसफर इट इनटू अ हेल्दी एग। तो मैंने एक थर्ड फीमेल से, एक डोनर फीमेल से एक हेल्दी एग लिया, उनका एग से मैंने न्यूक्लियस हटा दिया,
I removed the nucleus from her egg and put this pronucleus into this egg, right? So this technique is called pronuclear transfer, right? This can help after fertilization in preventing mitochondrial diseases, क्योंकि ये जो थर्ड फीमेल का एग है, इनका तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टेबल है, इनका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है. Second problem, or the second way to solve this problem is that let's say this is the father will contribute the sperm, mother will contribute the egg. मदर का हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो मदर के एग से हमने न्यूक्लियस पहले ही निकाल लिया. वी टुक दिस न्यूक्लियस आउट, वी टुक द डोनर फीमेल, और डोनर फीमेल का जो एग था, इनसे भी हमने न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया, और ये मदर का न्यूक्लियस हमने डोनर फीमेल के एग में पहले ही डाल दिया. दिस इज कॉल्ड maternal spindle transfer or reconstructed egg technology. Once we do this, what will we will have the donor female's egg with a healthy mitochondria, but the nucleus coming from the mother, और फिर इसको हम फादर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा देंगे, राइट? तो बच्चे को हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा. These two techniques will now involve the child having DNA from 3 parents, मदर का न्यूक्लियस, फादर के स्पर्म से फादर का न्यूक्लियस, एंड थर्ड फीमेल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, देयरफॉर कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी. तो दो टेक्निक्स हैं, maternal spindle transfer, ये हम करते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, एंड देन वी पुट द स्पर्म हियर. वन टेक्निक इज प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर, दिस वी डू आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड वी पुट द प्रोन्यूक्लियस हियर. तो यही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था यहाँ पर. तो पासिंग, अब देखते हैं स्टेटमेंट. पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, राइट? ये एक पहला बिल्कुल सही बात है. बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम ये चीज़ कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, या तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर से करेंगे विच इज़ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या maternal spindle ट्रांसफर से करेंगे विच इज़ बिफोर फर्टिलाइजेशन. देन child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father. Even this is correct. Yes, because mitochondria is coming only from the mother. So answer here will be C. Both statements are correct. आगे देखते हैं. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर. सेम क्वेश्चन था 2020 में पूछा था, 2021 में दोबारा पूछ लिया. नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू थिंक अबाउट अ लॉट. प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग इज द आंसर, राइट? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू जीएम मस्टर्ड. जीएम मस्टर्ड इस बार बहुत बहुत लाइकली है. देखो देयर हैज़ बीन अ प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो एंड देयर हैज़ बीन अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो. अगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएम मस्टर्ड के बारे में क्या बोला है तो डू टेल मी इन द कमेंट्स. जीएम मस्टर्ड इज कॉल्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है और एक हाइब्रिड भी है. इसमें बार्नीज, बारस्टार और बार 3 जीन्स हैं. एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी हियर, दिस ऑल्सो इफ यू नो डू टेल मी इन द कमेंट्स. बट लेट्स look at the question now. Has genes of a soil bacterium that gives plant the property of pest resistance from a wide variety of pests. Okay. GM mustard has genes that allow plant cross pollination and hybridization. Okay. GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agricultural University. अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं. मान लो मुझे कुछ नहीं पता जीएम मस्टर्ड के बारे में. लेट्स से आई डोंट नो एनीथिंग, ऑल्दो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज रेजिस्टेंट ओनली टू हर्बिसाइड्स, अ पर्टिकुलर हर्बिसाइड नेम बस्ता. और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है कि एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड से ये रिलेटेड है, राइट? तो जीएम मस्टर्ड सॉयल बैक्टीरियम दैट गिव्स प्लांट. मान लो मुझे बात नहीं पता, ये हर्बिसाइड वाली चीज़ मुझे पता नहीं है, राइट? आई हैव नॉट रेड, मैंने प्रिपेयर नहीं किया ढंग से. फिर भी इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ. कैसे करूँगा? चलो पेस्ट रेजिस्टेंस में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ. यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये स्टेटमेंट सही थी तो बस पेस्ट रेजिस्टेंस तक लिख देते तो भी बात बन जाती. Now you can use this for logical guessing, but again, yeah, this should be a last resort. Knowledge हमेशा बेटर होती है. ऐसी चीज़ें पोस्ट फैक्टो बताना, मुझे आंसर पता है, मैंने ये पढ़ा रखा है, आपको भी मैंने ये पढ़ा रखा है, तो ये बताना बहुत आसान है, राइट? बट इन दी एग्जाम डूइंग सच थिंग्स इज डिफिकल्ट. ऑल्दो करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, बट इतना रिस्क एपेटाइट आपका हो, एग्जाम में आपका इतना दिमाग चले, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. तो हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा दैट डोंट टेक दिस रिस्क. Yeah, sorry about that. So what we're doing here is that in DMH11 there is Barney's, Barstar and Bar technology, and it is actually resistant against a particular pesticide, particular herbicide called Basta. But बात यहाँ हो रही थी कि अगर हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, इवन देन यहाँ पर हमें देखते हैं कि यार ये वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट क्यों लिखा है. ये वाइड वेराइटी लिखा गया टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग. यू कैन यूज दिस बट नहीं करना चाहिए. नॉलेज पे जाते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट. That is why it's called Dhara Mustard Hybrid 11.
बार्नीज और बारस्टार को यूज़ करके इसकी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को एडिट किया जाता है. एंड देन it has been developed by actually Delhi University. So third statement is wrong. So answer here is B, 2 only. अब आगे चलते हैं. RNA interference technology has gained popularity in the last few years. Why? RNA interference is actually a method of cellular defense which happens in all eukaryotic organisms. होता क्या है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है. अगर बाहर से कोई पैथोजन आया और उसने अपना आरएनए यहाँ पर बनाया और वो प्रोटीन बनाना चाहा, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाके इस आरएनए से मर्ज हो जाएगा एंड एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा ताकि आगे उसकी ट्रांसलेशन ना हो सके. देन दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल बी अटैक्ड बाय रिस्क एंड डाइसर प्रोटीन्स and it will be cut and therefore this pathogen will not be able to express itself. Of course मैं थोड़ा brief में बता रहा हूँ, can't go into detail of explaining this technology, but I'm sure class में बहुत डिटेल में इस बारे में बात हो चुकी है, right? सो नाउ आरएनए इंटरफेरेंस में हो क्या रहा है, सेलुलर डिफेंस है, फॉरेन पैथोजन का जो आरएनए आएगा उसको रोकना है. अब इसको कैसे यूज किया जा सकता है? ओके, जीन साइलेंसिंग के लिए बिल्कुल यूज किया जा सकता है. जीन से आरएनए बना, आपने उस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया और वो फिर आगे ट्रांसलेट नहीं हुआ इनटू प्रोटीन, सो द जीन वाज इफेक्टिवली साइलेंस्ड. बिल्कुल. डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. देयर आर सम जीन्स दैट कॉज कैंसर. इन जीन्स को हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स. तो अगर आपने ऑन्कोजीन्स को साइलेंस कर दिया तो कैंसर ट्रीटमेंट हो सकती है. तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज. अब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. क्यों गलत है? हार्मोन रिप्लेसमेंट, हॉर्मोन्स are also proteins, right? For example, insulin is a hormone which is a protein. अब हार्मोन रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मेरी बॉडी इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर रही एंड आई एम एबल टू रिप्लेस इंसुलिन विद समथिंग एल्स, राइट? बट ये कैसे होगा? आरएनए इंटरफेरेंस से तो हम किसी जीन को बस स्टॉप कर सकते हैं. ऑल वी कैन डू इज एक्चुअली जस्ट स्टॉप अ जीन. बट फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोटीन. ये न्यू प्रोटीन तो इंटरफेरेंस से आरएनए को रोक के नहीं क्रिएट हो सकता. देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज. इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस. बिल्कुल. अगर आप वायरस के आरएनए को साइलेंस करना सिखा दो थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस क्रॉप प्लांट को, तो ऑफ कोर्स दिस थिंग विल वर्क, राइट? सो आंसर हियर इज 1, 2 and 4. And RNA interference we also read in tobacco plant with regards to a nematode called Melodyne incognitia, right? Now हमने इस साल ये न्यूज़ में था, इस साल ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज वी ऑल्सो रेड समथिंग कॉल्ड माइक्रो आरएनए दिस ईयर. तो माइक्रो आरएनए क्या है और वो यहाँ पर कैसे काम करता है? माइक्रो आरएनए हेल्प्स इन जीन रेगुलेशन. हाउ? अगर आपको ये बात पता है तो इसको अभी रिवाइज कर लो बिकॉज मुझे लगता है इस पर इस बार क्वेश्चन आना है. अगर आपको नहीं पता है तो सारथी है इसके यूट्यूब चैनल पे आई हैव अपलोडेड अ वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं. Recombinant DNA technology or genetic engineering allows genes to be transferred: A. Across different species of plants. B. From animals to plants. 3. From microorganisms to higher organisms. Now, यहाँ पर एक principle है called principle of continuity of DNA. Principle of continuity of DNA means that DNA is the same. DNA में वही चार तीन चीज़ें एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन होंगी चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो. एंड सिंस DNA is the same across organisms, it can be transferred from any organism to any organism. Principle of continuity of DNA. Answer is D, all of the above. Ab, mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plants to, okay, 1. Resist drought and increase absorptive area. 2. Tolerate extremes of pH. 3. Resist disease infestation. A mycorrhizal biotechnology is something that we read in environment also. अब माइकोराइजा एक्चुअली हेल्प करता है प्लांट को. वो जो फंगल, इट्स एक्चुअली अ फंगस दैट गेट्स अटैच टू द रूट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स ऑफ द प्लांट को जब वो अटैच होता है तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फंगल हाइफे यहाँ अटैच हो जाते हैं. माइकोराइजा गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट एंड माइकोराइजा गिव बेनिफिट्स टू द प्लांट. तो प्लांट माइकोराइजा को फूड देता है, माइकोराइजा प्लांट को बेनिफिट्स देता है और यही वो बेनिफिट्स हैं: इंक्रीजिंग द अब्जॉर्प्टिव एरिया, टॉलरेटिंग पीएच, रेजिस्टिंग डिजीजेस एक्सेट्रा. So answer here is C, 1, 2 and 3 only. Up. With reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing, often seen in the news, be used in the immediate future? Genome sequencing इस बार बहुत important है. क्यों? Because India has completed the first phase of the Genome India project, right? और इसका second phase launch कर दिया गया है. इसमें Indian data लेके we've actually created a sequence of DNA
जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वही काम हमने इंडियन डेटाबेस पे अब कर लिया है, इंडियन डीएनए के लिए कर लिया है, एंड दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडियंस और इंडियन डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स. बिल्कुल, अगर आप पूरा जीनोम, पूरा डीएनए अगर आप ऐसे पढ़ लोगे, उनका पूरा सीक्वेंस कर दोगे, तो यस ऑफ कोर्स इट कैन हेल्प अंडरस्टैंड, राइट. दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप. बिल्कुल, अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप में कौन कौन सी जीन्स हैं, राइट, यू नो ओके दैट दिस पर्टिकुलर लेट्स से पी प्लांट हैज़ द जीन फॉर टॉल प्लांट्स, तो बिल्कुल ये भी हम इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड, बिकॉज हमें पता होगा कि इस पर्टिकुलर प्लांट में टॉल प्लांट की जीन्स हैं, इस पर्टिकुलर प्लांट में राउंड सीड्स की जीन्स हैं, तो इनको मर्ज करके, इनको हाइब्रिडाइज करके एक टॉल और राउंड प्लांट बनाया जा सकता है. तो अगर मुझे जीन्स पता है तो न्यू वेराइटी डेवलप करना बहुत ईजी है. एंड लास्टली, डिसाइफरिंग होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप्स. बिल्कुल, अगर कोई पैथोजन आएगा और वो आके डीएनए में इंटीग्रेट होगा या डीएनए को इम्पैक्ट करेगा, या होस्ट में कोई सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होगा जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस, तो उसकी भी जीन्स हम देख सकते हैं. तो आंसर हियर इज डी 1, 2 एंड 3. जीनोम सीक्वेंसिंग इज बेसिकली रीडिंग द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द जीनोम. पूरा डीएनए किसी का पढ़ लिया. अब बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉल गार्ड. बॉल गार्ड इज गार्ड फ्रॉम बॉल वॉर्म्स. अब यहाँ पे बॉल ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ अ कॉटन बॉल. तो कॉटन प्लांट्स पे जो कॉटन बॉल होती है उसको, उसके अगेंस्ट गार्ड करते हैं यूजिंग दिस बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी. एंड कैसे करते हैं, बाय क्रिएटिंग अ बायोपेस्टिसाइड कॉल्ड बीटी कॉटन, राइट. सो आंसर हियर इज बी, डेवलपिंग जीएम क्रॉप प्लांट्स. अब माइक्रो सैटेलाइट डीएनए used in the case of which of the following? Microsatellite DNA is that part of DNA that has short tandem repeats, राइट. तो इट इज़ यूज इन डीएनए एनालिसिस, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अगर किसी चीज़ को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, डीएनए एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आई कैन कंपेयर माय डीएनए टू माय फादर्स डीएनए, देन माय ग्रैंडफादर्स डीएनए, देन हिज ग्रैंडफादर्स डीएनए, देन हिज ग्रैंडफादर्स डीएनए. तो ऑफ कोर्स आई कैन आल्सो स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स रिगार्डिंग दिस. यहाँ पर एक टेक्निक होती है कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, mini satellite DNA and micro satellite DNA. This is a good time to revise all of these concepts. Answer is A. Up. Which of the following statements is or are correct? Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy. Okay. Viruses can be cultured in any synthetic medium. Viruses are transmitted from one organism to the other by biological vectors only. पहले तो समझते हैं biological vector का मतलब क्या है. Biological means living vector. Any vector that is living. ऐसा तो नहीं है. Air can also transmit viruses. Droplets can also transmit viruses. These are non-living. Water can also transmit viruses. Water is non-living. So even non-biological vectors can transfer viruses. So third statement तो correct है. Oh sorry, third statement तो wrong है. It can, viruses can be transmitted through both biological and non-biological vectors. Third statement is wrong. Then viruses can be cultured in any synthetic medium. ये चीज़ गलत है. Right, viruses can only be cultured inside a living cell. That's why they are borderline between living and non-living. Synthetic medium pe they can't grow by themselves. And why can't they grow by themselves? Because they lack the enzymes necessary for generation of energy. Viruses only have a protein coat and they have DNA or RNA, and they sometimes have enzymes, but these enzymes are only with regards to replication of DNA and RNA. They actually use the machinery of the host cell to replicate. That is what is special about viruses. So first statement is correct. They don't have enzymes necessary for generation of energy. That is why they cannot be cultured in any synthetic medium. So ये statement wrong है and third statement भी wrong है. Answer here is A, one only. अब which of the same question दोबारा पूछा, exact same question. Which of the following can be cultured in an artificial or synthetic medium? Viruses cannot be cultured in artificial or synthetic medium. Reason हमने देखा. Third को eliminate करो. Answer A, 1 and 2. तो questions do get repeated. तो इस सेशन को ध्यान से देखो. इससे भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन दोबारा आ जाए. अब next question. Adenoviruses have single-stranded DNA genomes, where retroviruses have double-stranded DNA genomes. Okay. Common cold is sometimes caused by adenovirus, where AIDS is caused by retrovirus. Retrovirus. Retro means reverse. Retrovirus. Normal central dogma of genetics is DNA to RNA to protein, DNA to RNA transcription, RNA to protein translation. Retrovirus है उल्टा virus. It starts with RNA, does a process of reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उल्टा काम करता है, एंड बिकम्स डीएनए फर्स्ट, देन गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट.
तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज रेट्रोवायरसेस हैव आरएनए जीनोम्स नॉट डीएनए जीनोम्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, राइट? रेट्रोवायरस स्टार्ट विद आरएनए एंड डू reverse transcription. Then common cold is sometimes caused by adenovirus, correct, and AIDS is caused by retrovirus. This is also correct. The retrovirus in question here is HIV, human immunodeficiency virus. So answer here is B. AIDS की full form acquired immunodeficiency syndrome, attacks the immune system or T helper cells in the immune system. ये question भी आ चुका है, B cells और T cells का role, right? Answer here is B. आगे देखते हैं. Again, viruses can infect bacteria, plant, fungi. Answer here is of course all of the above. Viruses are actually the only pathogen. ये बात अब अगर ऐसे लिखी होती तो शायद हम गलत कर देते, but this is directly from a microbiology textbook. Viruses are the only pathogen that infect all forms of life. चाहे बैक्टीरिया हो उनको भी इन्फेक्ट करता है, तो ह्यूमन सबको इन्फेक्ट करता है. तो viruses infect all forms of life. Therefore answer is D, all of the above. अब what is the Cas9 protein mentioned in the news? हमने पढ़ा है about CRISPR Cas9 जिसके लिए जेनिफर डूडना एंड इमानुअल शार्पेंटियर got the Nobel Prize in physiology. CRISPR Cas9, this is a molecular scissors that's used in genetic editing. So answer here is molecular scissors for genetic editing, right? CRISPR Cas9 एक important system है, इस पर आगे भी हम देखेंगे, questions आ चुके हैं. अब ये देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, समटाइम्स हर्ड इन द न्यूज़, इनको मैच करना है इन टर्म्स को. CRISPR Cas9 एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये तो ऑब्वियसली गलत है, राइट? इवन इफ यू जस्ट एलिमिनेट 3 यू कैन रीच द आंसर हियर विच इज 2. बट बाकी देख लेते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बेल टू एक्सपेरिमेंट, बेल टू एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? बेल टू एक्सपेरिमेंट वॉज एक्चुअली डन टू अंडरस्टैंड मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर एंड पार्टिकल फिजिक्स. ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, राइट? तो दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट थी पार्टिकल फिजिक्स, ये एक्चुअली बेल टू एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, राइट? तो ये भी गलत है. आंसर हेयर इज 2 ओनली, राइट? बट बेल टू एक्सपेरिमेंट आगे के लिए याद रखना, हो सकता है इस पे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए. अब द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2021 में. मैंने खुद ये प्रीलिम्स दिया है, उस साल का करंट अफेयर्स था, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. ACE2 स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. ये एक टाइप का रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है जो हमारे सेल्स पे होता है, और इस रिसेप्टर से ही हमारा कोविड-19 बाइंड करता है, राइट? दिस इज द आइडिया. तो इट वाज एक्चुअली स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस, बट उस टाइम का न्यूज़ है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब इस चीज़ को हम इग्नोर भी कर सकते हैं. अब मिशन इंद्रधनुष launched by the government of India. Indradhanush has 7 colors of the rainbow, right? This is actually a way to prevent 7 vaccine preventable diseases. 7 vaccine preventable diseases को prevent करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था. So answer here is A, immunization of children and pregnant women. अब आगे देखते हैं. Consider the following statements. In tropical regions, Zika virus is transmitted by the same mosquito that transmits dengue. Sexual transmission of Zika virus disease is possible. Now both these statements are correct, both 1 and 2. This is the answer and both statements are correct. अब आपने comments में बताना है कि ये कौन सा mosquito है. Which is this mosquito that transmits dengue? इस पे भी कई बार question आ चुका है. A से इसका नाम start होता है. Do tell me in the comments which mosquito is this. Now, which of the following reasons are there for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens? Very 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 important for this year. मेरे हिसाब से microbial resistance और antimicrobial resistance पे इस बार पक्का क्वेश्चन आएगा. देर अगर आता है तो बायोटेक से, तो यहाँ दिस इज अ वेरी लाइकली टॉपिक. वाई? बिकॉज देर हैव बीन अ लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, राइट? तो आप देखते हैं. जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, ओके. Taking incorrect doses of antibiotics to cure diseases, okay. Using antibiotics in livestock farming, okay. And multiple chronic diseases in some people. अब इसको देखते हैं. पहले हम ऑप्शन 1 को अभी के लिए इग्नोर करते हैं. लेट्स लुक एट ऑप्शन 2 फर्स्ट. इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेस, ये तो एक मेजर कॉज होता ही है. दिस इज करेक्ट. ऑप्शन 3 देखते हैं. एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, बिल्कुल ये भी करेक्ट है. हम लाइफ स्टॉक में यूज़ करते हैं. यहाँ पर एक WHO भी ये बात बहुत टाइम से कह रहा है, देयर इज अ वन हेल्थ अप्रोच, दी हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड. तो अगर आप लाइफ स्टॉक में यूज़ करोगे एंटीबायोटिक्स, देन इट गेट्स बायो अक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो. अच्छा, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. क्रॉनिक डिजीजेस इन सम पीपल. यार यहाँ पे पहले एक बात बताओ, कहीं लिखा है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है या नहीं? इवन डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिजीज, इवन स्ट्रोक इज अ क्रॉनिक डिजीज.
Paroxysmal supraventricular tachycardia is also a chronic disease. Just मजाक कर रहा हूँ, showing off my medical knowledge. But like even this is a chronic disease. अब ये डिजीजेस इन्फेक्शियस नहीं है, इनका एंटीबायोटिक से कोई लेना देना नहीं है. डायबिटीज सॉल्व करने के लिए हम एंटीबायोटिक नहीं देते. क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं, राइट? तो पहले तो इस ऑप्शन को समझो कि दिस ऑप्शन हैज नथिंग टू डू विद एंटीबायोटिक्स एनीवे, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. तो फोर्थ को हम एलिमिनेट कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. आंसर हमारा 2 and 3 बनता है. नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शन 1, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल. ये कह रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड हैं. प्रीडिस्पोज मीन्स लाइकली और मोर मोर अमीनेबल टू समथिंग. दैट आई एम लेट्स से प्रीडिस्पोज टू टेकिंग लॉन्ग लेक्चर्स, राइट? तो मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर लेता हूँ क्योंकि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, राइट? तो इफ़ यू आर प्रीडिस्पोज्ड, जेनेटिकली यू आर प्रीडिस्पोज्ड टू लेट्स से सर्टन माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, इससे क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगी? नहीं, वैक्सीन से दो, राइट? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Antimicrobial resistance happens when you let bacteria evolve in the context of antibiotics. So answer here is 2 and 3. Up. Which one of the following is not correct? Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. Okay. Hepatitis B virus, unlike hepatitis C, does not have a vaccine. Okay. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C virus are several times more than those infected by HIV. Okay. Some of those infected by hepatitis B and C virus do not show the symptoms for many years. अब hepatitis जो है, hepatic means liver, hepatitis are virus that actually affect our liver. अब यहाँ पर बोला है hepatitis B is transmitted much like HIV. This is absolutely correct. There is sexual transmission or basically transmission through body fluids. So most common way is actually the contamination of blood, और उससे hepatitis B हमारा जो है वो transmit होता है. But if you look at hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have a vaccine. This statement is wrong. Hepatitis B के लिए वैक्सीन अवेलेबल है. अब हेपेटाइटिस सी के लिए जो वैक्सीन है उस पर भी इस बार न्यूज़ आई है, इसको जरा एक बार गूगल करना. दिस हैज़ बीन इन द न्यूज़. सम वैक्सीन इज बीइंग टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस सी. डू स्टडी अप बाय योरसेल्फ. तो आंसर हियर इज बी बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. हेपेटाइटिस बी का सेफ वैक्सीन अवेलेबल है एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. तो आप सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाए, मुझे भी लगाए, राइट? अब let's move on to 26. Genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. Absolutely, yes, they can be. This is what we call germline gene therapy. दूसरी type of gene therapy is somatic cell gene therapy. Person genome can be edited before birth at early embryonic stage. बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? This is also correct. Now, human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. बिल्कुल आप कर सकते हो if you want to, let's say, grow a new organ, right? So all three of these statements are correct. All right. So all three of these statements obviously are correct because all three of these things are possible. And the answer here is D, 1, 2. आगे चल. अब biofilm. Word breakdown की technique use करते हैं. Films made of biological things. Biological things are living things. So let's say bacteria की बैक्टीरिया की फिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू. बिल्कुल ह्यूमन टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है मेडिकल इम्प्लांट्स की. बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस. बिल्कुल इस पे भी इन्फेक्शन हो सकती है. बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. किस चीज़ की बनी हुई है बायोफिल्म्स? बैक्टीरिया की बनी है. बैक्टीरिया कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो बायोफिल्म्स कैन ऑल्सो एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. आंसर इज राइट. सो ऑल थ्री ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, right? Because biofilms are films, let's say, made of bacteria. तो तीनों चीज वो कर सकती हैं. Answer is D, 1, 2 and 3. Consider the following statement made in respect of probiotics. Yakult की ad सबने देखी होगी. Probiotics are materials that, or they are basically supplements that we take that help improve our microbiome. तो पहला क्वेश्चन है, what is our microbiome? देखो हमारी बॉडी में देर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया दैट आर लिविंग एज कमेंसल बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल, वन सच बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस acidophilus इज द बैक्टीरिया दैट्स ऑल्सो फाउंड इन कर्ड. जैसे आपने अगर कभी घर पे कर्ड बनाई हो या अपने फैमिली में किसी को कर्ड बनाते हुए देखा हो, व्हाट डू वी डू? वी टेक मिल्क इन अ पॉट एंड छोटा सा उसमें कर्ड का छोटा सा एक पार्ट डाल देते हैं और रात को उसे छोड़ देते हैं एंड सुबह कर्ड बनी मिल जाती है. दिस इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क. यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया जो कर्ड में प्रेजेंट है इसको हम मिल्क में डाल रहे हैं. बैक्टीरिया स्प्रेड करता है और कर्ड बनाता है. दिस इज व्हाट हैपन, राइट? दैट इज द जॉब ऑफ दिस बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. अब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है. तो व्हेन वी टेक मिल्क
it actually leads to curdling of milk in our body. That is why curd is easier to digest. Milk is more difficult to digest because जब हम ये मिल्क लेते हैं तो हमारी बॉडी में इस बैक्टीरिया का काम है ये करना. So these are good bacteria that are present in our body, right? Probiotics are things that are given to us जो हम खाते हैं या जैसे याकुल्ट हो गया. they contain these good bacteria or good yeast which we then have inside our body and helps improve our gut health. So probiotics are made of both bacteria and yeast, yes, of course. Organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. ये statement गलत है. They do naturally occur in our gut, जैसे कि lactobacillus helps in digestion of milk sugars. Of course, this is exactly the job of lactobacillus. Answer is 1 and 3. अब, which of the following can be transmitted from one person through other through tattooing? अब टैटूइंग में क्या होता है? लेट्स से आपने किसी पे टैटू बनाया, यू एक्चुअली यूज नीडल्स, राइट? हाउ डू डिजीजेस गेट ट्रांसमिटेड थ्रू टैटूइंग? इफ नीडल्स आर शेयर्ड. इफ नीडल्स आर शेयर्ड, लेट्स से आई एम गेटिंग अ टैटू मेड. तो जब मैं टैटू बनवाऊंगा, दैट नीडल वुड गो एंड हिट माई स्किन सेल्स. वहाँ पे कुछ इंक इम्प्रिंट करेगी. वो जो स्किन सेल्स हैं, दो देयर माइट बी सम माइक्रो ब्लीडिंग देयर. हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग वहाँ पर हो बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग अ नीडल अगेंस्ट द स्किन. दैट ब्लड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द नीडल एंड देन यू यूज द नीडल विद समवन एल्स. तो वो ब्लड ट्रांसमिशन हो जाती है. तो एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी डिजीजेस ब्लड ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट हो सकती है. एंड इफ यू नोटिस हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है. हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो करेक्ट, एचआईवी इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर हियर इज 2 and 3. चिकनगुनिया इज एक्चुअली स्प्रेड थ्रू मस्कीटोज, नॉट डायरेक्टली थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन. अब अगर आपको ये पता है तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि चिकनगुनिया कौन से मस्कीटो है. नाउ विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? विटामिन सी कॉजिंग स्कर्वी, विटामिन डी कॉजिंग रिकेट्स, विटामिन ई कॉजिंग नाइट ब्लाइंडनेस. ये करेक्टली मैच नहीं है. विटामिन ए इज एक्चुअली रेटिनॉल विच इज़ देयर फॉर आवर रेटिना. अगर विटामिन ए नहीं होगा, रेटिनॉल नहीं होगा, जो अब लोग स्किन पे लगा रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, तो इट्स एक्चुअली विटामिन ए दैट्स फॉर रेटिनॉल and that is for our retina. And if you don't have enough vitamin A, you will have night blind. अब विटामिन ए हम स्किन पे क्यों लगाते हैं? विटामिन ए हम स्किन पे लगाते हैं बिकॉज विटामिन ए हेल्प्स ऑल्सो इन इम्यूनिटी, right? Skin or physical barriers की immunity है. So if someone's skin barrier gets broken, let's say someone starts biting their skin or somebody else starts biting your skin, right? Your skin barrier might get broken. तब retinol लगा लेना चाहिए to restore that immunity, right? Answer is 1 and 2 A. अब H1N1 वायरस वेरी कॉमन, पर बहुत एपिडेमिक भी हुई है दिल्ली में. 56% पीपल हैव रिपोर्टेड और 56% पेशेंट्स, दैट सीम्स लाइक द एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे. 56% लोगों को H1N1 हुआ है. दिस इज एक्चुअली स्वाइन फ्लू. HNN here stand for hemoglutinin and neuraminidase. H1N2 भी न्यूज़ में था, H5N1 भी न्यूज़ में था, राइट? So do read these things. Very likely that question gets asked this year again. अब ये हमने कर लिया. नेक्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन. एट ये देख, लेट्स लुक एट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स. न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स आर कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेट वैक्सीन्स में बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन की गई है ऑफ अ प्रोटीन एंड अ पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड इज कार्बोहाइड्रेट. तो पॉलीसैकेराइड जो होता है वो वीक एंटीजन होता है. तो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को आपस में ज्वाइन किया गया है ताकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिसिटी आ सके. किसके अगेंस्ट है ये अगेंस्ट न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है. न्यूमोकोकल बैक्टीरिया क्या करा सकता है? निमोनिया करा सकता है, मेनिंजाइटिस करा सकता है, सेप्सिस करा सकता है. तो बिल्कुल इन तीनों के अगेंस्ट इफेक्टेड है. देन डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस. इसका क्या लॉजिक है, क्या मतलब है स्टेटमेंट का? अगर आपने किसी को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दे दिया तो अब न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से उनको प्रोटेक्शन मिल गई. नाउ यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी. दिस इज करेक्ट. हैव नो साइड इफेक्ट्स, कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस. ऐसा तो वैक्सीन दुनिया में आज तक कोई नहीं बना जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो. तो आंसर इज बी 1 and 2. अब with reference to the developments regarding recombinant vector vaccines. Recombinant DNA combining DNA that normally does not occur together. Vector means carrier. Somebody will carry this DNA. तो recombinant बनाएंगे तो genetic engineering बिल्कुल अप्लाई करेंगे. that will join two pieces of DNA not found together. 1 is correct. 2, bacteria and viruses are used as vectors. ये भी correct है, राइट? बैक्टीरिया भी होंगे, वायरस भी होंगे, वेक्टर दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है. बैक्टीरियोफेज को भी यूज़ किया जा सकता है. वायरस विच इज़ अ बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस, और बैक्टीरियल प्लाज्मिड को भी यूज़ किया जा सकता है. आंसर इज सी.
आगे देखते हैं. In context of the vaccines manufactured in the COVID-19 pandemic, consider the following statement. Okay. Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. This is absolutely wrong. India did not have any mRNA vaccines, so this is wrong. Covishield was produced as the same way जैसे स्पटनिक 5 प्रोड्यूस हुआ था बाय रशियंस विच वाज अ वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म एडिनोवायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन था सेकंड इज करेक्ट कोवैक्सीन वाज इनएक्टिवेटेड पैथोजन दिस इज आल्सो करेक्ट बट अगेन ये उस साल के करंट अफेयर्स हैं आई गेव दिस प्रीलिम्स आल्सो वाज द ईयर इन व्हिच आई गॉट सिलेक्टेड बट उस टाइम पे करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था अब अगर आपको नहीं भी याद तो इट्स ओके डोंट नीड टू वरी अबाउट इट अ लॉट राइट आंसर इज सी 2 and 3 अब ओके मूविंग ऑन अब which of the following statement describes the best role of B and T cells immunity का role है simple so they protect the body from diseases caused by pathogens told you this question has also come so easy to solve up which of with reference to the recent developments in science which one of the following statements is not correct तो गलत बताना है ठीक है functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from different species okay pieces of artificial functional DNA can be created in labs okay a piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a lab okay cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in lab petri dishes अब very interesting question राइट सो देखो पहला ऑप्शन अभी छोड़ते हैं लेट्स रीड पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैब्स ये तो बिल्कुल हम कर सकते हैं वी आर डूइंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अच्छा पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट कैन बी मेड टू रेप्लिकेट इसको भी हम कर रहे हैं इन समथिंग कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वी आर मेकिंग पॉलीमर्स ऑफ डीएनए दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिविजन ये काम भी हम कर रहे हैं राइट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी डू आंसर हियर इज ए इज नॉट करेक्ट फंक्शनल पूरा क्रोमोजोम ही बना देना making a complete chromosome this is not possible right so a is wrong अब Wolbachia method इस बार भी न्यूज में है right Wolbachia method is with regards to what it is with regards to controlling viral diseases spread by mosquitoes इस बार भी न्यूज में है दो तरह के Wolbachia method होते हैं मेल्स में यूज किया जाए या फीमेल्स में यूज किया जाए इसमें डिफरेंस होता है दो कंट्रीज इसमें काफी आगे हैं ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर they have been using this method for population suppression and population replacement अब अगर आपने पढ़ा है तो do revise this आगे देखते हैं aerial metagenomics purely word breakdown का question है aerial okay means something from the air and metagenomics means beyond genomics genomics is we know it's regarding DNA metagenomics is beyond genomics so let's say some surveillance of DNA like looking at how does DNA work okay so connecting DNA samples from air in a habitat at one go okay understanding genetic makeup of avian species okay airborne devices to collect blood samples ये तो नहीं हो सकता sending drones to inaccessible areas ये भी नहीं हो सकता right तो it has to be between these two अब मेरे को आंसर पता है तो मैं आपको बता ही दूंगा बट इन द एग्जाम हॉल हाउ डू यू हैंडल सच क्वेश्चंस अगर ये बर्ड से रिलेटेड होता राइट तो इट वुड हैव बीन एवियन मेटाजेनोमिक्स ये एयर से रिलेटेड है तो इट इज एरियल मेटाजेनोमिक्स एंड दिस वर्ड ब्रेकडाउन टेक्निक डज एक्चुअली वर्क आंसर हियर इज ए अच्छा अब इसकी बात करते हैं दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट वी लुक एट व्हेन वी स्टडी एनवायरनमेंट so which of the following are used to create transgenic crops transgenic crops is basically crops which have some genetic components that are coming from various organisms right अच्छा तो budding and grafting cytoplasmic male sterility and gene silencing ये जो budding and grafting है this budding and grafting is actually yeah so budding and grafting I'm sorry for the constant pausing I'm in the ORN office and इतने लोग आ चुके हैं एक्चुअली इस वीडियो के बीच में कोई ऑफिस में like you know कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ and that's why you're seeing maybe you will see a couple of pauses sorry about that but I'm continuing to record anyway so budding and grafting in fruit plants अब budding and grafting जो चीज़ें हैं they are not used for creating genetically modified crops right they are just used for vegetative propagation मतलब ये प्लांट है इसका कुछ बड हमने निकाला और इसको एक और प्लांट बना दिया इसका एक बड निकाला एक और प्लांट बना दिया ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए यूज नहीं होता दिस इज जस्ट वी टेक आउट समथिंग एंड वी ग्राफ्ट इट और पुट इट समवेयर एल्स एंड मेक अ न्यू प्लांट तो फर्स्ट इज रॉन्ग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड जीन साइलेंसिंग आर यूज्ड इस नाम से भी क्लियर होगा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जैसा कुछ हमने DMH11 में भी देखा है बार्नीज बार्स्टार टेक्नोलॉजी एंड जीन साइलेंसिंग तो हम कर ही सकते हैं फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन सो आंसर हियर इज बी 2 and 3 अब इम्प्रॉपर हैंडलिंग
and storage of cereal grains and oil seeds result in the production of toxins known as aflatoxins, which are generally not destroyed by normal cooking process. Now, alpha toxins किससे produce होते हैं? Again, this is a question that is generally not expected this time. उस style के current affairs हैं. These are things that sometimes we don't know also, तो भी काम चलता है. Aflatoxins are actually produced by fungi, which are molds, which is C. Aflatoxins कई बार दाल में और येलो दाल में कई बार मिल जाते हैं. That is why it was in the news at that time. But अभी अगर आपको ये नहीं भी पता तो कोई बात नहीं. अब fruit stored in a cold chamber exhibit longer storage life because. अब ये देखते हैं. Exposure to sunlight is prevented. Okay. Concentration dioxide in the is increased of carbon environment. I think थोड़ा गलत लिख दिया गया है. Carbon dioxide की concentration is increased होना चाहिए. Rate of respiration is decreased and there is increase in humidity. This should be the 4 options ideally. Now, if you actually store a plant in a cold chamber, so the rate of respiration will actually decrease. जब respiration कम होगी, the plant will not, the cells will not breathe, तो उसकी degradation भी कम हो जाएगी, and that is the answer here. Rate of respiration gets decreased. Now, अब ये question भी again vegetative propagation से linked है. So this question is also related to vegetative propagation. देखो vegetative propagation मैंने आपको अभी explain किया था in context of budding and grafting. ये ऐसे एक plant है, ठीक है. मैंने उस प्लांट का एक छोटा सा यहाँ से एक पार्ट कट किया लेट्स से, और इसको एक और यहाँ पर प्लांट कर दिया. अब ये एक नया प्लांट बन गया. अब ये क्या है? दिस इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम वन पेरेंट, और वन पेरेंट की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लोनल रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीड्स टू अ क्लोनल पॉपुलेशन. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वायरस. अगर मान लो इसी प्लांट में यहाँ पर वायरस हुआ, तो ये वायरस यहाँ पर भी जाएगा, तो एलिमिनेट तो नहीं हो रहा है वायरस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड थिंग, प्रैक्टिस्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. ऑफ कोर्स पूरे साल आप ये काम कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? व्हाट कैन नॉट बी प्रैक्टिस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर इज सीड प्रिपरेशन. सीड्स कैन नॉट बी मेड थ्रू आउट द ईयर. इसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है, राइट? सो आंसर हियर विल बी सी 1 and 3 ओनली. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर. डायरेक्ट, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इट इज़ अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बट जीएम क्रॉप्स इंपॉर्टेंट जरूर हैं. What is the application of somatic cell nuclear transfer technology? Somatic propagation, somatic cell nuclear transfer. ये एक सोमैटिक सेल है, इसमें एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है 2n. इसको मैंने ट्रांसफर करा और एक और एग में डाला और यहाँ से एग बनाया, तो क्या होगा? क्लोनिंग होगी. तो क्लोनल प्रोपोगेशन पे भी क्वेश्चन आया है, क्लोनिंग पे भी क्वेश्चन आया है. आंसर इज सी. अब देखो ये जो क्वेश्चन है अबाउट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट मोस्ट पीपल वुड नॉट नो, राइट? अगर आप डॉक्टर हो तो शायद आपको पता हो, बट वैसे इस बारे में पता होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए. आइडली इन द पेपर यू शुड स्किप दिस. आई नो द आंसर हियर इज नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट? नाइट्रिक ऑक्साइड इज एक्चुअली अ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर, राइट? और इससे हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट होती हैं. ऐसे कंस्ट्रक्ट, मतलब ऐसे ब्लड वेसल है, इट विल बिकम लाइक दिस. बट दिस इज नॉट समथिंग वी नीड टू रीड, राइट? बिल्कुल भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. आंसर इज ए. बट ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाएं ना, इनके लिए पढ़ना चाहिए, इनको स्किप कर देना. अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड. अब देखो पहले बात करते हैं व्हाट आर हाइड्रोजेल्स. हाइड्रोजेल्स आर जेल्स जिनमें से लिक्विड हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड, एंड लिक्विड आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया है. अब देखो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी तो इस बार न्यूज़ में भी है. मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई हैव रिसर्च दिस ऑल्सो. मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर डी होना चाहिए, बट यूपीएससी हैज़ समटाइम्स हैड द टेंडेंसी ऑफ गिविंग वियर्ड आंसर्स हियर. मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव. बट कभी कभी ऐसे वियर्ड आंसर्स भी आ जाते हैं, इसकी आंसर की अभी आई नहीं है. बट येस, इन सच क्वेश्चंस इफ आई वाज इन द पेपर आई वुड ऑल्सो टिक डी, बिकॉज कहीं ना कहीं यूज जरूर होता होगा, एंड हाइड्रोजेल्स आर समथिंग दैट हैव वाइड एप्लीकेशन. अब मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन है 2024 का. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं? अगर अब हमने यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कॉल ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जो हमारे घर में होता है, राइट? आई हैव टॉट दिस इन द क्लास. ये आरओ जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली यूज इन आरओ टेक्नोलॉजी. हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसमें एक मेम्ब्रेन है, एक तरफ देर इज़ क्लीन वाटर, एक तरफ देर इज़ अनक्लीन वाटर जो टैप वाटर होता है, और टैप वाटर से अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्लीन वाटर. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट अ रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन इज. डिटेल में नहीं जा रहा हूँ.
तो वहीं से आप लॉजिक लगा के ये गेस कर सकते हो दैट इट इज़ यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब ये क्वेश्चन है बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज, उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नॉट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर नाउ। नाउ ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, अगर आपको ये नहीं पढ़ा है आपने, एंड इट्स ऑल्सो करंट अफेयर्स ऑफ दैट ईयर, स्टिल हम लॉजिक लगाते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनोकुलम। एक्चुअली यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया दैट डू डीकम्पोजिशन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये चीज़ है। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर दी ओनली एंड प्रोडक्ट्स। देखो अगर हमारा ह्यूमन वेस्ट है तो इट विल ऑल्सो बी हाइड्रोकार्बन बेस्ड, जैसे हम एक्चुअली हाइड्रोकार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं, तो इवन हेयर हाइड्रोकार्बन वुड बी यूज्ड। हाइड्रोकार्बन का डीकम्पोजिशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ये चीज़ें ज़रूर निकलेंगी, राइट। सिर्फ अमोनिया और वाटर वेपर एंड प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते। आंसर here शुड बी डी, नीदर वन नॉट टू, बट अगेन दैट ईयर्स करंट अफेयर्स, डोंट नीड टू वरी अबाउट सो मच। ये क्वेश्चन भी देखो 2013 का, बिल्कुल जनरल साइंस का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं भी प्रिपेयर किए हैं तो कोई बात नहीं, अब डॉक्टर हो तो ऑफ कोर्स यू विल हैव अ एडवांटेज, बट ऐसे एक आधे क्वेश्चंस के लिए ओवर 10 ईयर्स मे बी देयर हैव बीन 3-4 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस, बट इसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्चुअली ये तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आंसर हियर इज डी, बट अगेन सच क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट अलोन। नाउ विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस, बिल्कुल। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओके। यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, आर बायोडिग्रेडेबल। देखो आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज को कंसिडर करते हैं। आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज का मतलब है कि अगर मैं इनको ब्लड कैपिलरीज की जगह डालूं तो ए दे शुड बी एबल टू डायलेट, दे शुड बी एबल टू कंस्ट्रिक्ट, दे शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इम्यून रिएक्शन। अगर आप बाहर से ऐसा कुछ बनाओगे तो बहुत मुश्किल है कि वो सारा काम कर पाए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड देयरफॉर द आंसर इज 1, 3 एंड 4। अब एक चीज़ और, अब ये ट्रिक वाली बात है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू समथिंग, बट अगेन पेपर में ये चीज़ अप्लाई करना मुश्किल बहुत होता है। आई डेफिनेटली हैव टू शो यू दैट अगर यहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज लिखना होता तो ये पार्ट ऑफ स्टेटमेंट क्यों लिखा, फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सिर्फ आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज लिख देते। ये लिखा गया है टू मेक इट एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट अगेन दीज थिंग्स यू कांट डू इन द पेपर, तो ऑलवेज ट्रस्ट योर नॉलेज फर्स्ट, राइट। आंसर हियर इज सी, 1, 3 एंड 4। आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Targeted drug delivery is made possible. Okay. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Both statements are correct. अगर आपने देखा हो नैनो टेक्नोलॉजी को जनरली हम एक enabling technology मानते हैं. It enables the use of various other things. So it's an enabling technology. Answer here is C, both 1 and 2. अब 2022 का नैनो टेक्नोलॉजी का एक और क्वेश्चन, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पढ़ते ही समझ आ रहा होगा ये स्टेटमेंट गलत है। Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. बिल्कुल। अब अगर आपने नैनो टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो बताओ विच मेटालिक ऑक्साइड्स एंड विच कॉस्मेटिक्स, क्लास में पढ़ा है मैंने, आपको आना चाहिए। थर्ड, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, बिल्कुल। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, आंसर इज डी। अब इन विच ऑफ द, अब स्पेस टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं हम, तो नैनोटेक के आपने देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं। लेट्स कम नाउ टू स्पेस टेक। In which of the following activities Indian remote sensing satellites are used? Indian remote sensing satellites कैसी हैं? Polar satellites that are in sun synchronous orbit. तो अर्थ के क्लोज हैं, ये अर्थ है, अर्थ के क्लोज हैं, ऐसे जल्दी जल्दी रोटेट करती हैं और अर्थ को कवर करती हैं। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल। मिनरल एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टडीज, इनके लिए कौन सी सैटेलाइट्स यूज होती हैं? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कितना दूर होती हैं अर्थ से? 35,786 किलोमीटर्स इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। पोलर सैटेलाइट्स कहाँ होती हैं? इन लो अर्थ ऑर्बिट, अबाउट 0 to 2,000 किलोमीटर्स। तो आंसर हियर इज ए, 1, 2 एंड 3। अब अब ये देखो, ग्रीस लाइटनिंग 10। ग्रीस लाइटनिंग 10 अगेन उस साल का करंट अफेयर्स, 2016 का करंट अफेयर्स। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं बट वी जस्ट नो कि गलती से अगर ये ऑप्शन रिपीट हो गया, बट इट इज सच एन ओल्ड न्यूज दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट। तो GL10 जो है, it was actually a electric plane that NASA had tested, right? So answer here is A, but again not something that you should be worried about. आगे देखते हैं। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ये सारे कहाँ यूज होते हैं? इवेंट होराइजन इज विद रिगार्ड्स टू अ ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी इज विद रिगार्ड्स टू अ ब्लैक होल,
standard model of particle physics is trying to understand the universe. String theory is a explanation of how the universe has evolved. It says that matter consists of little strings, right? Answer is A, observation and understanding of universe. And बहुत बार ये questions repeat हुए हैं, हम अभी देखेंगे. अब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इसमें कितनी सैटेलाइट्स हैं? देयर आर 7 सैटेलाइट्स. नेविगेशन सिस्टम है, कितनी जियो सिंक्रोनस में है और कितनी जियो स्टेशनरी में है, ये आप कमेंट में बताओगे. इट हैज़, अच्छा आगे लिखा ही हुआ है, सॉरी अबाउट दैट. 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी, 4 इन जियो सिंक्रोनस. दिस इज करेक्ट. कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर. ये स्टेटमेंट गलत है. इट इज एक्चुअली ओनली 1500 किलोमीटर. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle of 2019. ऐसी hyperbole statement वैसे भी गलत होती है. Answer is A, one only. अब India satellite launch vehicles के बारे में ये क्वेश्चन है. PSLVs launch satellites useful for Earth resources monitoring. कौन सी सैटेलाइट्स हुई Earth resources monitoring के लिए? जो अभी देख रहे थे, पोलर सैटेलाइट. PSLV का तभी नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. वेयर GSLV लॉन्च vehicles are designed mainly to launch communication satellites. कौन सी सैटेलाइट्स? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, तभी नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. बिल्कुल सेंस बना रहा है. सेकंड, सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड. परमानेंटली फिक्स तो क्या होगा? जियो स्टेशनरी होगा. ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो सेकंड तो गलत है. PSLV will launch polar satellites, not geostationary satellite. GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle where first and third stage use solid rocket motors and second and fourth stage use liquid rocket engines. Sorry, वो मेरे पीछे छुप रहा है, it's liquid rocket engines. This GSLV Mark III is actually a 3-stage vehicle जहाँ पे स्टार्ट होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक इंजन. ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक्चुअली एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की है जिसमें सॉलिड लिक्विड 4 स्टेजेस हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर हियर इज A, वन ओनली. आपने देखा उन्होंने कैसे स्टेटमेंट स्विच कर दी. यहाँ पर PSLV GSLV को स्विच कर दिया, यहाँ पर भी PSLV GSLV को स्विच कर दिया. ये कई बार होता है. अब which of the following pairs is are correctly matched? Cassini-Huygens, orbiting the Venus and transmitting data to Earth. Okay. Messenger, mapping and investigating Mercury. Voyager 1 and 2, exploring the outer solar system. Cassini-Huygens is actually monitoring Saturn, not Venus. So Cassini-Huygens is wrong. Messenger is correct. Voyager is correct. Answer is B, 2 and 3 only. अब प्रोजेक्ट लून, ये लून अगेन उस साल का करंट अफेयर्स है. लून की जगह यहाँ पर एक्चुअली अगर मैं बलून लिख देता तो बहुत ईजी हो जाता. इट वॉज विद रिगार्ड्स टू वायरलेस कम्युनिकेशन. अगेन दैट ईयर्स करंट अफेयर्स, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट टू मच. तो अगर आप देखोगे साइंस एंड टेक में मे बी 10-20% क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स होते हैं हर साल, 1-2 क्वेश्चन. मेजरली आप देखोगे तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा रही है. अब इवॉल्व लाइसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. ई लाइसा जो प्रोजेक्ट जो है, दिस इज टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देयर आर ग्रेविटेशनल वेव्स. We understand gravity in 2 ways. One was Newtonian gravity, where it was understood as a force. Force is equal to gravitational constant into m1 into m2 by r square. But r square, sorry. But जो आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा that gravity is actually a bending of space time and gravity can work as a wave. इसके लिए इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिससे हम क्या पढ़ते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेट्रा. और आप देखोगे इस पर कई क्वेश्चंस आ चुके हैं. To detect gravitational waves is the right answer here, and we'll see similar questions आगे also. अब scientists observed merger of giant black holes billions of light years away from Earth. What is significance of this event? खुद सोचो. When two major events such as black holes or two major gravitational bodies such as black holes will merge, they will send ripples in the fabric of space-time and gravitational waves will come. देखो question repeat हुआ gravitational waves का. आगे देखो. The term Goldilocks zone. Goldilocks का अगर आपको स्टोरी सुना हो, she wanted porridge that was neither too hot nor too cold. तो ये Goldilocks zone कहाँ पे आएगा? ये वो प्लैनेट्स हैं जो हम आउटर स्पेस में ढूंढ रहे हैं जो अर्थ जैसे हों, neither too hot neither too cold and they are livable. Answer is C. Search for Earth like planets in outer space. अब मंगलयान मिशन ऑफ इसरो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन. made India to made India the second country to have a spacecraft orbit Mars after USA. Made India only country to be successful. Sorry, one second. Sorry about that.
completely recovery हुई नहीं है अभी. So is also called Mars orbital mission. That is correct. Made India the second country to have a spacecraft orbiting Mars after USA. This statement is wrong. USSR had also had such a uh, spacecraft, and even European Space Agency had it, and made India the only country to be successful of making it to Mars in very first attempt. This statement is correct. Answer is C, 1 and 3. अब फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्लास में भी पढ़ाया है. बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, FOBS. देखो, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक मिसाइल भेजूं लाइक दिस, एंड दिस कंट्री बी हैज ऑल इट्स रेडार्स इन दिस डायरेक्शन, it will be able to detect this missile. The other thing I can do is I first send the missile into space, make it orbit the earth, and then let's say it will hit the country from this side. Now the country B does not have any orbits here. So FOBS becomes a very powerful missile delivery system. Now this is what was developed by the Chinese, and the Americans were very worried about it, और इसीलिए ये न्यूज़ में था. So a missile is put into a stable orbit around the earth and deorbit over a target on the earth. Answer is C. If a major solar flare reaches the earth, which are the possible effect? अब देखो, इस टाइप के जब क्वेश्चंस मिले हमें जिसमें इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हाट डू वी डू? सारे ऑप्शंस में हमें दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन बहुत काम आती है. देखो, हमें यहाँ पर एक भी अगर इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया ना तो बहुत हेल्प होगी. ठीक है, सोलर फ्लेयर से क्या हो सकता है देखते हैं. पहला ऑप्शन, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल. हाँ, सोलर फ्लेयर आएगा तो हो सकता है हमारी सैटेलाइट्स इंपैक्ट हो जाएं, हमारा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाए, राइट. सेकंड, सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स. यार सुनामीज कैसे होती हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है. सुनामीज वी रेड इन ज्योग्राफी कैन हैपन बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स अंडर द अर्थ. अर्थक्वेक से सुनामी वेव्स जनरेट होती हैं, सोलर फ्लेयर से सुनामी वेव्स जनरेट नहीं होती. बस हमें सेकंड एलिमिनेट करना है, एंड वी विल रीड आवर आंसर. वी डोंट इवन नीड टू रीड द अदर ऑप्शंस, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग. पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, यस. इंटेंस ऑरोरास कुड बी देयर, यस. ऑरोरास क्यों अकर करते हैं? सोलर फ्लेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आर इंटरेक्टिंग. फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस, नहीं. सोलर फ्लेयर का ये काम नहीं है कि वो एक्चुअली अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ा के फॉरेस्ट फायर करा दें. दे आर got to do with the particles that the sun is emitting. Orbits of satellites could be disrupted, yes. Short wave radio communication could be disrupted, yes. So answer here is C. Then अब ये देखो, ये है आइस क्यूब. आइस क्यूब is a neutrino observatory, right? And it is a telescope that was there to search dark matter, and नाम से ही clear है that it was buried deep inside the ice. So basically all three options are correct here, but again that year's current affairs. यहाँ पर important क्या है, आपको पता हो कि dark matter क्या है. You need to know what dark matter is. Answer here is D, 1, 2 and 3. अब AstroSat, astronomical observation satellite by ISRO. Other than USA and Russia, India is the only country to have launched similar observatory into space. Okay, 2000 kg satellite placed in an orbit 1650 kilometer above the earth. ये स्टेटमेंट गलत है. इट इज़ एक्चुअली एट 650 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. इस टाइप का डेटा जब आता है तो इट्स वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू मेक इट रॉन्ग. तो इट्स बेटर टू एक्चुअली टेक अ लुक एंड सी इफ यू नो ओनली इफ यू आर वेरी श्योर देन टेक इट करेक्टली. अब फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, सो आंसर हियर इज डी, नीदर वन नॉट टू. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, राइट. ठीक है, देखते हैं. मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस, बिल्कुल. बैंकिंग ऑपरेशंस, बिल्कुल इसमें यूज़ तो कर ही सकते हैं हम जीपीएस टेक्नोलॉजी को. और पावर ग्रिड्स का कंट्रोल, इसमें भी हम जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, राइट. बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग सर्विसेज भी हैं, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज भी हैं जो जीपीएस के थ्रू होते हैं. तो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. आंसर इज डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी बिकॉज ग्रेविटी इज बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम. यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, यस, हमने रेड शिफ्ट पढ़ा है, राइट. मैटर वॉर्प्स अराउंड इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, बिल्कुल. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मैटर बेंड स्पेस टाइम. ऑल थ्री आर करेक्ट. एंड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनमें से क्या क्या प्रिडिक्ट किया था? यस, ऑल थ्री वर प्रिडिक्टेड. आंसर इज डी. इस पे एक और बार क्वेश्चन आया हुआ है सेम कॉन्सेप्ट पे. अब ये देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं. द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन flying in formation in shape of an equilateral triangle that has sides of 1 million kilometers long, lasers shining. तो ये क्या किया है हमने, 3 स्पेसक्राफ्ट लिए, उनसे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग. क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी भी तरह का, इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव जो इस 1 मिलियन किलोमीटर की लेंथ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, तो
हम इसको डिटेक्ट कर सकें. दिस इज ELISA. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन देखो, सेम कॉन्सेप्ट गेटिंग रिपीटेड, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम. सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है. इसको देखते हैं. Which of the following is one of the reason why astronomical distances are measured in light years? Light की speed is always constant. This is what Einstein had discovered. Light speed is always constant. That is why matter can bend space and matter can actually dilate time. Gravity bends space time. Same concept hai. Answer here is uh, D. Speed of light is always same regardless of observer. अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. राइट, ये क्वेश्चन है. अब इसका आंसर अगेन आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि जापान इज द आंसर. दैट्स क्लियर. बट जापान का जो सिस्टम है, एक तो आप उसका नाम बताओगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिस्टम, एंड आप कमेंट्स में बताओगे कि इस सिस्टम का जो एप्लीकेशन है, इज इट अ रीजनल सिस्टम और अ ग्लोबल सिस्टम. दिस यू हैव टू टेल मी नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स. ओके. कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. अब इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो. कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. अगर किसी स्टार का रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा न्यूक्लियर फिशन कर रहा है, ज़्यादा न्यूक्लियर या तो फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा कर रहा है, व्हाट विल दैट मीन? It will get exhausted quickly, it will die quickly. So second statement is correct. And if the second statement is correct, the first cannot be correct. तो या तो फर्स्ट करेक्ट होगी या सेकंड. दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स. तो हम ए और बी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द रियलिटी हियर? एक्चुअली giant stars do have a greater rate of nuclear reactions, so therefore they do not live longer, they live shorter. Answer here is D. 1 is incorrect, 2 is correct. अब अग्नि 4 मिसाइल. अग्नि अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स पे पहले भी क्वेश्चन आया है. यू विल सी दैट अगेन ऑल्सो. एक और बार इस पे क्वेश्चन आया है. इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल. बिल्कुल सही बात है. लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली. नो, इट हैज सॉलिड फ्यूल. एंड रेंज ऑफ अग्नि 4 इज नॉट 7500 किलोमीटर. ये आपको कहा था. इस टाइप का डेटा जनरली मेक श्योर इट्स करेक्ट, अदरवाइज डोंट टेक इट राइट. अग्नि 4 की जो रेंज है वो 5000 से भी कम है. राइट, सो आंसर हियर इज ए, 1 ओनली. अब the known forces of nature can be divided into 4 forces. Okay, gravity, electromagnetism, weak nuclear force and strong nuclear force. All right, with reference to them, which of the following statements is not correct? Okay, gravity is the strongest of the 4. No, gravity is actually the weakest force of these 4. Right, so answer here is A directly. हमें not correct ही ढूंढना था. A is not correct. फिर भी पढ़ लेते हैं. Electromagnetism acts on particles with an electric charge. Correct. Weak nuclear force leads to radioactivity. Correct. Strong nuclear force holds protons and neutrons together. Correct. अब consider the following pairs. इस क्वेश्चन को देखते हैं. Cepheids, giant clouds of dust and gas in space. यार ये तो नेबुला की डिस्क्रिप्शन लग रही है, बट नेबुला तो सेकंड ऑप्शन है. नेबुला स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली. यहाँ पे अगेन लाइक यू सी दिस डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्वॉप्ड. तो 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. इन्होंने स्विच कर दिया है. राइट, तो अब सिर्फ थर्ड ऑप्शन हमें देखना है. पल्सार्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स that are formed when massive stars run out of fuel and collapse. Absolutely correct. Answer here is A, only 1. Third option is the only option that's correct. Ab. Question 77. The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. Okay. Which are the importance or importances of discovering such particle? Okay. It will enable us to understand why elementary particles have mass. Okay. Enable us in the near future to develop technology to transfer matter from one point to the other without traversing physical space. Basically teleportation. ऐसा तो कुछ नहीं है. It will help us to create better fuels for nuclear fission. ऐसा भी कुछ नहीं है. The role of Higgs boson is only, it was called the God particle. God particle because it explained how all other particles got their mass. ये 2013 में न्यूज़ में भी था. तब लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर में इसको डिस्कवर किया गया था. आंसर हियर इज ए, 1 ओनली. अब ये क्वेश्चन है INS अस्त्रधारिणी के बारे में. उस टाइम पे न्यूज़ में था. अगेन देखिए, डायरेक्ट 1 वर्ड क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स. It was a torpedo launch and recovery vessel. Answer is C. Nothing to explain here. Answer will be C. आगे देखते हैं.
टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड सिस्टम, इस बार भी इस पे क्वेश्चन आना काफी लाइकली है, एंड दिस टाइम इफ द क्वेश्चन कम्स इट विल कम ऑन समथिंग कॉल्ड द आयरन डोम, जो इसराइल यूज करता है. आयरन डोम इज ऑल्सो अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंड थर्ड इज अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम. आंसर हियर इज सी. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन्स. अब इसमें ना एक बात देखना, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है दैट वेदर दिस एक्टिविटी कैन बी डन. पूछा यहाँ पर ये है कि ड्रोन्स किस में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इन अ क्रॉप फील्ड, यस. इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, यस. कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस. अब यहाँ ये नहीं पूछा गया कि स्पाउटिंग वेल्स के जो ब्रेथ सैंपल्स होंगे उससे डीएनए एनालिसिस करा जा सकता है या नहीं. क्या ड्रोन्स यूज किए जा सकते हैं टू कलेक्ट दी सैंपल्स? यस. आंसर हियर शुड बी 1 2 एंड 3. इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं. अब एक बार देखते हैं स्पाउटिंग वेल का मतलब क्या होता है. लेट्स से दिस इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट ड्रॉन वेल, दुनिया की सबसे गंदी ड्रॉ करी गई वेल है ये. वेल्स आर एक्चुअली मैमल्स, वेल्स आर नॉट फिशेस. फिशेस में गिल्स होते हैं, गिल्स हेल्प फिशेस ब्रीद अंडर वाटर. मैमल्स कैन नॉट ब्रीद अंडर वाटर. तो जैसे डॉल्फिन्स हैं या वेल्स हैं, दीज आर मैमल्स, दे विल emerge out from the water, they will jump out of the water and they will remove they will breathe out basically. अब ये जो ये ब्रीद आउट करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे, एयर अंदर लेंगे, इस सैंपल को अगर मैं ड्रोन से कलेक्ट कर लूँ तो क्या मैं इससे डीएनए एनालिसिस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. राइट. सो आंसर हियर इज डी. 1 2 एंड 3 ऑल करेक्ट. आगे देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन आप देखो बैलिस्टिक मिसाइल पे क्वेश्चन आया है. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स while cruise missiles are rocket powered only in initial phase of flight. मैंने आपको बोला था यूपीएससी does do this option swapping a lot of times. ये है बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, अ प्रोजेक्टाइल बेस्ड ट्रेजेक्ट्री, और ये है क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री. राइट. तो एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली फॉर द इनिशियल फेज. राइट. एंड क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड थ्रू आउट देयर फ्लाइट. यहाँ उल्टा कर दिया है. तो यहाँ पर बैलिस्टिक की जगह क्रूज होना चाहिए और यहाँ क्रूज की जगह बैलिस्टिक होना चाहिए. वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल. ब्रह्मोस इज सॉलिड फ्यूल्ड आईसीबीएम. ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल. अगेन स्वॉपिंग इज बीन डन. आंसर हियर इज डी. बी केयरफुल ऑफ सच स्वॉपिंग, ये कई बार होती है. अब 2024 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट. फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या ऑप्शन है? रफाल, मिग 29 और तेजस मार्क 1. इंडिया डज नॉट हैव एनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एट द मोमेंट. तभी इस बार जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड प्रेसिडेंट ट्रंप इन यूएसए, द फैक्ट दैट वी आर बीइंग ऑफर्ड द F-35 was a big deal because F-35 is a fifth generation fighter. Answer here is D, none of the above. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये हम कहाँ सुनते हैं? दिस वी हियर इन समथिंग कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर पे आगे भी हम क्वेश्चंस देखेंगे. तो ए यहाँ पर तो आंसर होगा ए, विच इज डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पे आ गए हैं हम. नॉन फंजिबल टोकन्स, they enable digital representation of physical assets. Okay. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. Okay. They can be treated or they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transactions. ये जो statement number 3 है, ये तो fungibility की description है. This is exactly what fungibility is. ये statement तो गलत होगी. They are by name non-fungible tokens. Third statement is wrong. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाट आर एनएफटीज? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक डिजिटल इमेज ड्रॉ करी ऑफ अ कैट, राइट, मे बी द वर्ल्ड्स वर्स्ट ड्रॉन कैट. तो एनएफटीज आर अ digital virtual identifier around this image, a sort of digital frame around this image, right? तो ये चीज़ होती है what is an NFT, and they are unique cryptographic tokens and they do exist on a blockchain. So answer here is A. Only third statement here was wrong. Up. With reference to bitcoins sometimes seen in the news, consider the following statements. Again blockchain technology पे question है. Okay. Tracked by the central banks of currencies. अगर सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज अगर बिटकॉइन को ट्रैक ही कर लेती, राइट, तो इसको क्रिप्टो करेंसी और इसको टेरर फंडिंग और इतनी बड़ी प्रॉब्लम बोलने का इशू क्या था? तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग. एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस. दिस इज करेक्ट. यहाँ पर पब्लिक की ही यूज की जाती है.
Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. Correct? Because all you would know is the public key of the other person, not the identity. That is the problem of Bitcoins. That is why it can lead to anonymous funding. Answer here is B. आगे चलते हैं. वही क्वेश्चन दोबारा बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है. डिजिटल सिग्नेचर. व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड that identifies the certifying authority issuing it. Okay, used as proof of identity of an individual to access information or server on the internet. Okay, electronic method of signing a document and ensuring that original content is unchanged. Now if you think about it, this statement is definitely correct. This is what a digital signature is. It uses something called hash cryptography. Consider statement 2. Proof of identity of an individual to access information. This is a password. This is not digital signature. Second is correct. One is description of digital certificate, not description of digital signature. So even first statement is correct. Answer here is C, 3 only. अब एक और ब्लॉकचेन पे एक और क्वेश्चन. With reference to blockchain technology, consider the following. A, it is a public ledger that everyone can inspect, but no single user controls. Yes, it is permissionless, trustless, decentralized ledger. Correct? Structure and design of blockchain is such that all data in it is about cryptocurrency only. No, absolutely wrong. अब तो हमारी नई blockchain strategy भी आ गई है, where we are having blockchain as a service called Vishwasya. Second is wrong. Third, applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. Yes, because it is a permissionless system. Answer here is D, 1 and 3 only. अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिल जाए, राइट, व्हेन यू सी सच बिग क्वेश्चंस इन द पेपर, डोंट गेट स्कैर्ड. हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है तो यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, बट डरना नहीं. आई जस्ट रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली. When the alarm of your smartphone rings in the morning, okay, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. Smart mirror in your bathroom shows the day's weather and indicates the level of water in your overhead tank. Okay. After you take some groceries from your refrigerator from making breakfast, recognizes the shortage of stock. Order for supply of fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all lights, fans, geyser, ACs get switched off automatically. On the way to the office, car warns you about traffic congestion, suggests an alternate route. Late for a meeting, it sends a message accordingly. अब कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई गई है, राइट? दिस इज क्लियरली अ प्लेस वेयर ऑल द डिवाइसेस आर connected. So an internet of things connecting all devices together. Up. In the context of digital technologies for entertainment, consider the following. Augmented reality. Simulated environment is created and the physical world is shut out. नहीं. Augmented reality अगर आपने Pokemon Go गेम के बारे में सुना हो, या अगर आप Amazon पे जाओ एंड वहाँ पर आप क्लिक करो ऑप्शन व्यू इन योर रूम, देन यू विल सी व्हाट ऑगमेंटेड रियलिटी इज. ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? दैट यू आर नॉर्मली सीइंग समथिंग ऑन योर फोन. जैसे आपको नॉर्मली ये वीडियो दिख रही है और यहाँ पर आपको एक ड्रैगन दिखने लगे, दैट वुड बी ऑगमेंटेड रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? यहाँ पर हम वो VR हेडसेट पहनते हैं एंड द एंटायर वर्ल्ड इज क्लोज्ड आउट, राइट? सो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. VR images generated from a computer are projected onto real life objects. ये भी गलत है. AR allows individuals to be present in the world and improve the experience using the camera of a smartphone. बिल्कुल. VR closes the world. बिल्कुल. Answer is 3 and 4 B. अब आगे देखते हैं. Let's continue. या तो क्वेश्चन नंबर 89. अब इस क्वेश्चन का शायद तब जो आंसर था और अब जो आंसर है, क्वेश्चन 90 एक्चुअली, तब जो आंसर था और अब जो आंसर है वो सेम नहीं है. एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, AI कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स. यस, AI एक पैटर्न एनालिसिस करके एक प्लान बना देगा और आपको बताएगा कि हाँ आप ऐसे अपनी लाइट्स ऑन करो, इस टाइम पे बंद करो, एक्सेट्रा. क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. मे बी इन 2020 इट कुंट, बट टुडे AI कैन डू दिस. डिजीज डायग्नोसिस, बिल्कुल आप उसे सिम्टम्स दे दो, वो आपके डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प तो कर ही देगा. टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, दिस ऑल्सो इट कैन डू टुडे. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज अ हार्डवेयर प्रॉब्लम. अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना है तो आपको एक टाइप ऑफ हार्डवेयर चाहिए.
AI is not hardware, AI is a software. So this definitely cannot be correct. Although उस टाइम पे शायद ये भी नहीं कर सकता था AI. So if you eliminate option 5, you will get 1, 3 and 4. तब शायद मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स में ही नहीं बना सकता था, बट आज बना सकता है. तो बी केयरफुल इफ यू गेट दिस क्वेश्चन अगेन. नाउ क्वेश्चन 91, क्यूबिट. डेफिनेटली चांस है इस बार इस क्वेश्चन का आने का. एंड इफ यू डू नो, टेल मी व्हाट मेजोराना 1 इज. अगर आपको पता है, आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो बताना मेजोराना 1 क्या है. क्यूबिट ऑफ कोर्स क्वांटम बिट इज कनेक्टेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग, बट अगर इस बार आएगा तो शायद मेजोराना चिप से कनेक्टेड क्वेश्चन आए. ऑलराइट. विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एनएफसी टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिस टेक्नोलॉजी से हम कार्ड को ऐसे टैप करते हैं, व्हेन वी टैप आर कार्ड्स on the POS machine and the payment happens, that is what uses NFC. It is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. Yes, okay. आगे देखते हैं. NFC is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other. जब हम टैप करते हैं कार्ड को तो ठीक है, बिल्कुल जस्ट पास हो और जस्ट कॉन्टैक्ट ना हो रहा तब तक तो ठीक है. बट यू इमेजिन 1 मीटर अपार्ट. आई एम 1.78 मीटर्स टॉल. 1 मीटर अपार्ट बहुत दूर हो गया. Right? Statement 2 is definitely incorrect. NFC, near field cannot operate at 1 meter distance. Second is incorrect. Second आप हटा देते हैं. And third, can use encryption when sending sensitive information. बिल्कुल encryption तो यूज कर ही सकता है. Answer is C, 1 and 3. आगे. Regarding DigiLocker, sometimes seen in the news, which of the following statements are correct? Okay. Digital locker system offered by the government under Digital India program. Access your e-documents irrespective of your physical location. हम लोगों को पता ही है डिजी लॉकर के बारे में, ऑल्दो 2016 का करंट अफेयर्स भी है. बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट्स हैं दोनों. आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट. आंसर हियर इज सी. विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. VLC पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लाइफाई पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths 375 to 780. This is exactly where visible light is. This is correct. अब लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन. हाँ बिल्कुल. Wait, sorry, it says long range, my bad. VLC is not long range. Just hold on 1 second. There's some confusion. Let me just check. Yeah, VLC is not long range. Sorry for that, my bad. VLC is not long range. VLC is a short range technology. Second statement is wrong. It can transmit large amount of data faster than Bluetooth. This is correct. And VLC has no electromagnetic interference. This is also correct. VLC is actually short range. Sorry about this. VLC ऐसा है कि if you shine it in a room, if it cannot cross the barrier of this room, it will not go on to the other room. जैसे इस रूम में लाइट है बट सेकंड रूम में नहीं जा रही है, तो it will not go to the other room. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होती VLC में, because it's at a much greater bandwidth. And third statement is also correct. Answer here is C, 1, 3 and 4. अब in addition to fingerprint scanning, which of the following can be used for biometric identification of a person? Iris is a part of your eye. Iris को स्कैन करके आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. रेटिनल स्कैनिंग, रेटिना को किया जा सकता है. वॉइस रिकॉग्निशन से भी आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. आंसर हियर इज डी, 1, 2 एंड 3. अब 3D प्रिंटिंग. इस बार न्यूज़ में क्या है? 4D प्रिंटिंग. 4D प्रिंटिंग में फोर्थ डायमेंशन क्या होती है, ये आप मुझे एक बार कमेंट्स में लिख के बताना. 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, ऑफ कोर्स बना सकते हैं. बायोनिक ईयर्स बना सकते हैं. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम उससे कुछ डेवलप कर सकते हैं. जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है उसे तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में, येस ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड. डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, हाँ ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड. आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. अब with reference to the technologies LTE and voice over LTE, which of the following are correct? LTE is commonly marketed as 3G. Voice over LTE is commonly marketed as advanced 3G. LTE is data only. Voice over LTE is voice only. नहीं, LTE और long term evolution is actually 4G technology. ठीक है. बट पहले क्या होता था कि जब आपके पास LTE होता था, कई बार अभी भी ये कई सिम्स में हो जाता है, दैट व्हेन यू हैव 4G ऑन, अगर आपको कॉल आ गया, राइट, तो योर कॉल विल बी डाइवर्टेड इधर टू 2G 3G नेटवर्क, या आपका साथ में इंटरनेट नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज ओनली वन ऑफ दीज थिंग्स कुड वर्क, इधर वॉइस वुड वर्क और इंटरनेट वुड वर्क. पहले ये होता था LTE में. देन दिस न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड वॉइस ओवर LTE केम, जिसमें साथ में 4G और वॉइस दोनों चलने लगे. सो आंसर हियर इज डी. ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है. वॉइस ओवर LTE इज वॉइस एंड डेटा टुगेदर. अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी,
विच कैन बी अकम्प्लिश बाय वेरेबल डिवाइसेस। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन हमारी जीपीएस वॉच कर सकती है, स्लीप मॉनिटरिंग हमारी स्मार्ट वॉच कर सकती है, असिस्टिंग द हियरिंग ऑफ एन इम्पेयर्ड पर्सन कर सकती है। हमें एक अगर डिवाइस मिल दी जाए जिसे हियरिंग एड कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वेरेबल टेक्नोलॉजी। सो आंसर हियर इज डी 1, 2 एंड 3। अब which of the above are built on open source digital platforms? Arogya Setu, Covin, DigiLocker and Diksha. All four of these are government apps. Open source का मतलब क्या होता है? That government shares the source code openly. गवर्नमेंट ये क्यों शेयर करती है कि कई लोगों को अगर कोई प्राइवेसी कंसर्न हो कि इस ऐप से कहीं हमारा कोई डेटा स्टील हो रहा है वगैरह वगैरह, तो एवरीबडी कैन लुक एट द कोड एंड बी वेरीफाइड कि यार कोई डेटा कंसर्न, कोई प्राइवेसी कंसर्न नहीं है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब with reference to Web 3.0. What is Web 3.0? Internet that is built on a blockchain based network. Web 3.0 enables people to control their own data, correct? Web 3.0 world, there can be blockchain based social networks, bilkul, operated by users collectively rather than a corporation. This is also correct. Answer is D, 1, 2 and 3. Congratulations, we have done 100 questions. Now, software as a service. हमारी email ID है ask@sarthi.com। अब ये ईमेल आईडी कैसे बनी, यहाँ पर ये sarthi.com कैसे लिखा आया? Actually, this is a Gmail service only. We pay Gmail for this service. Gmail is offering us email service or email software as a service. So this is exact description of software as a service. जब हमें ये email खोलनी होती है, we actually log into the Gmail platform only. हम कहीं और नहीं जाते. This is not some other website. So SaaS buyers can customize user interface and can change data fields. बिल्कुल हम अपने user interface में labels, अपने logos सब change कर सकते हैं. एक्सेस डेटा थ्रू मोबाइल सर्विसेज, ईमेल है बिल्कुल, जैसे जीमेल ऐप पे आपका ईमेल खुलता है, ये ईमेल भी हमारी जीमेल ऐप पे खुल जाता है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सास। यस, आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड कम्युनिकेशन शॉर्ट रेंज डिवाइसेज और टेक्नोलॉजीज। ओके, पहला है सीसीटीवी और क्लोज सर्किट टेलीविजन। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी, RFID। ओके, एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। Right, as I'm sure आप नाम से ही समझ गए होंगे that all three of them are short range technologies. Answer here is D. CCTV आपको पता ही है, शॉर्ट रेंज में जहाँ पर अप्लाइड है वहीं पे ही उसे इट वर्क्स। सेकंड बात है RFID की। RFID टैग्स आपने देखे होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कई बार वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं तो अपने आई कार्ड्स को ऐसे टैप करते हैं ना, बीप कम्स, राइट, दैट इज़ RFID। और आप अगर देखो जो फास्टैग है, फास्टैग ऑल्सो यूज RFID, सो रिलेटिवली शॉर्ट रेंज ओनली। एंड WLAN अगेन ओवर अ शॉर्ट रेंज, राइट? सो आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब which one of the following words or phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? The answer here is of course metaverse. अगर आप बाकी भी देखोगे, बाकी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। इट्स अ फेयरली कॉमन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स में भी था, तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन दिस इज जनरल केमिस्ट्री, वेरी पुअर कॉस्ट बेनिफिट इन चेजिंग सच क्वेश्चन। आपको आंसर इस क्वेश्चन का मैं ज़रूर बता देता हूँ। वाटर का स्ट्रक्चर, H2O का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वाटर में एक्चुअली काफ़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग it is very easy for water to dissolve other molecules, so it is actually dipolar in nature, right? And ये जो dipolarity है, that is what helps water dissolve and make it a universal solvent. तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बट अगेन डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल, right? Don't need to go into the detail of this. Hydrogen, oxygen here has a 2 negative charge, every hydrogen has a relatively positive charge, don't need to go into this. अब which of the following is are examples of chemical change? Again these are questions of general science जो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आते थे और इनमें बहुत पुअर कॉस्ट बेनिफिट है, बट स्टिल वी आर लुकिंग एट इट जस्ट कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता रहे। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट,
सॉल्ट के मैंने क्रिस्टल्स बना दिए, क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं। सॉल्ट से क्रश था, उसका क्रिस्टल बना दिया। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस थी, आइस को मेल्ट करके वाटर बना दिया, क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं। सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्डलिंग होने लग गई। येस, अ पर्टिकुलर केमिकल मस्ट हैव चेंज्ड इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मिल्क, ओनली देन सारिंग हैज हैपेंड। तो आंसर हियर इज 3 ओनली, विच इज बी। बट अगेन ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, डोंट नीड टू लुक एट देम इन डिटेल। अब क्वेश्चन 105, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। अब इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। वैसे ये क्वेश्चन इकोनॉमी में भी कर सकते हैं। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा अबाउट डब्ल्यूटीओ, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वॉट इज दिस डिपार्टमेंट कॉल्ड नाउ? अब इस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, ये आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओगे। अब इन अ प्रेशर कुकर, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, क्यों आया ये? इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड वेट ऑफ द लिड। एब्सोल्युटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है, डोंट नीड टू रीड अबाउट इट। ऐसा क्वेश्चन दिखे पेपर में स्किप कर देना। आंसर हेयर इज सी वैसे, बट बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए, राइट? अब आगे देखते हैं। Question 107. Which of the following are optical illusions? Right? Okay. Size of sun at dusk. Okay. Color of sun at dawn. Moon being visible at dawn. Twinkle of stars in the sky. Pole star being visible in the sky. Right? इनमें से कौन कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन का क्या मतलब कि दीज आर नॉट एक्चुअली हैपनिंग, ये एक्चुअली नहीं हो रहे हैं, but yes, we see them because of something called either refraction or diffraction of light or bending of light. ठीक है। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, पोल स्टार विजिबल तो ऑटोमेटिकली है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट बेंड कर रही है या कुछ चेंज हो रहा है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, मून इज ऑल्सो जस्ट विजिबल, मून इज देयर, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं हो रहा है। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। साइज ऑफ सन एट डस्क, नाम से ही क्लियर है, sun is appearing bigger or smaller than its shape, that means it is an optical illusion, it's not happening ideally, but थोड़ा सा दिख रहा है। color of sun at dawn, बिल्कुल सन का एक्चुअल कलर नहीं है, वो सन का एक्चुअल कलर वाइट है, राइट? सन इज एमिटिंग वाइट लाइट, बट हमें ऐसा दिख रहा है डॉन पे रेड के टाइप का, दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग, वो हमें ऐसा दिखता है बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट एंड व्हाट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। सो 1, 2 एंड 4 आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स, बस हमें क्वेश्चन पढ़ना ढंग से था, राइट? अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन ओल्ड क्वेश्चन, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, हम बस कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग एवरीथिंग। बॉल bearings आर यूज्ड इन बाइसिकल कार्स एक्सेट्रा बिकॉज बॉल bearings आर सर्कुलर इन कलर। ये फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी उसको याद होगा दैट जो हमारी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इफ़ यू रीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर होती है रोलिंग फ्रिक्शन, राइट? तो बॉल बेयरिंग्स को हम यूज़ करते हैं फॉर एक्चुअली रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, राइट? जब हम बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं, जो तो फ्रिक्शन होती है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच कॉन्टैक्ट इज़ देयर। अगर मेरे हाथों के बीच में बस इतना कॉन्टैक्ट है, कम कॉन्टैक्ट है, तो कम फ्रिक्शन होगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। तो बॉल बेयरिंग्स यूज़ करते हैं हम फ्रिक्शन कम करने के लिए, एंड यहाँ पर होना चाहिए द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थोड़ा it's not properly framed, maybe there's some typing error here. The effective area of contact between the wheel and axle gets reduced, and this is why ball bearings are used. So answer here is C. आगे देखते हैं। Let's look at this question. अब देखो यार, ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है? एक्सेलरोमीटर का काम क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। एक्सेलरोमीटर मेजर्स लीनियर वेलोसिटी, कि आप ऐसे जा रहे हो तो कितना एक्सेलरेट कर रहे हो। तो एक्सेलरोमीटर कहाँ रिक्वायर्ड होगा इन सारे एक्शंस में, वो देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स, बिल्कुल एकदम से चेंज है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड, इमीडिएट टर्निंग ऑफ अ हार्ड ड्राइव, हाँ बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला देखो, डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ अ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। अब आइडियली ये काम जायरोस्कोप का है, राइट? बट आई टेल यू हाउ एन एक्सेलरोमीटर इज यूज्ड हियर। एग्जाम में ये करना बहुत मुश्किल है। लेट्स से ये आपका फ़ोन है,
आपने ऐसे टिल्ट किया तो शायद रोटेट ना हो, बट ऐसे टिल्ट करोगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि कितनी जल्दी टिल्ट किया, और वो आपको फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप मोड चला जाएगा, राइट। आंसर हियर इज ऑल थ्री, बट अगेन ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे, very difficult to get it right, especially on the basis of the options that are framed here. So you can skip this, it's not a problem. Okay. Rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which one of the physical or which of the following physical phenomena are responsible for rainbows being produced? ठीक है, देखते हैं. पहला, dispersion of light. Okay. Second, refraction of light. Third is internal reflection. The answer here is D. All three of these above are there, but again, बिल्कुल भी इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज अगेन जनरल फिजिक्स, एंड टू स्पेंड योर टाइम रीडिंग क्वेश्चंस लाइक दिस इज़ नॉट वर्थ इट. तो आप देखोगे कि पहले, स्पेशली अगर आप 2013-14 का टाइम देखोगे, तो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ दीज आर नॉट आस्क्ड दैट फ्रीक्वेंटली. एनीवे, that brings us, okay, there is one more question. I thought we were done, but we're going to finish at 111, which is Nelsung, and this was question 2024. Up. Identification of narcotics on passengers at airports, monitoring of precipitation, tracking migration of animals. In how many can radars be used? Again, tough question to solve honestly. देखो मैं आपको बता देता हूँ रेडार का काम क्या होता है. इट सेंड्स अ रेडियो वेव लाइक दिस एंड इट गेट्स अ रेडियो वेव बैक लाइक दिस. ठीक है. अब रेडियो वेव यहाँ जाके इस ऑब्जेक्ट को हिट करेगी और रेडियो वेव वापस आएगी. जितना टाइम जाने और आने में लगा उससे ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है. दैट इज व्हाट अ रेडार इज. तो ऑप्शन 2 और 3 में तो कोई डाउट नहीं है. अब नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इनसाइड एयरक्राफ्ट, दिस इज अ डाउटफुल स्टेटमेंट. मैंने रिसर्च भी करके देखी इस पे. अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं यहाँ पर ओनली 2 मार्क करता, राइट. एंड सिंस आई एम, यू नो, देयर इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी हियर, या तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बाकी दोनों के बारे में मैं श्योर हूँ. आई वुड हैव मार्क्ड ओनली 2 हियर, बट अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. बट इन द एग्जाम यू शुड नॉट स्किप सच क्वेश्चंस. अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो टिक कर देना. मैं होता तो ओनली 2 करता, बट अगेन व्हेन यूपीएससी गिव्स अ फाइनल आंसर की द ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंगली फ्रेम्ड हियर. एनीवे, तो फाइनली वी हैव एक्चुअली रीच्ड टू द एंड. इस वीडियो में काफ़ी इंटरप्शंस मेरे साइड से भी हो गई. हैड अ कपल ऑफ मीटिंग्स और बीच में थोड़ी तबियत खराब हो गई, तो इवन आई हैड टू स्टॉप. बट इट्स गुड दैट वी फिनिश्ड एंड वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. आई होप इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 80 हियर, यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक. देखो कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के पहले आते थे और कुछ अभी भी आएंगे जो मुश्किल होंगे सॉल्व करने. बट अगर 80 से ज़्यादा आप इस वीडियो में कर पाए इन क्वेश्चंस को, that means you're on the great track as far as science and tech is concerned, and you have a much greater edge above others, because most लोग इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते ही नहीं है, right? So thank you for your time, and if you watched till the end, do comment your score in the comments so that I know you watched till the end. Thank you. See you next time. Bye bye.